Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Fine, tired, busy, exhausted, sleepy? Oh, get ready. It's time for lesson. Alright, so this is Mohammad Hamad and you are watching video lesson and it's lecture number 11. And you have mashallah completed 10 lectures and you have improved, I guess. Not much, but a bit. Alright, so after completion of your 10 lectures, there are some common challenges you are facing, and almost every student is sharing his or her problems with me. So I have brought today some of the challenges that students are facing and how we can cope up or overcome or deal with those problems. Okay, these are all three words are used for the same meaning. How you can solve these problems and how you can clear these problems and go straight to your destiny. I guess you want to speak. Yes, you want to. That's why you are watching this lesson and you are improving a lot. Okay, so here we are with our assignments review. First we will have the review, and then at the end of this lecture we will be talking about the challenges and how we can overcome them. So let's talk about the assignments of lecture 9, because both assignments were was from the same topics. Difference between some and any, use of some and any, and there is and there are. And we talked about used to, so let's talk about some and any. In lecture number 9 there was a worksheet and there were two parts, question 1 and question 2. So first question 1. There aren't some, you have to put some or any, okay? There was a choose the best answer. You have to choose one of the correct answers. Right answer, not one of the right answer. You have to correct. Okay, there aren't dash pencils. Okay, so that was an incorrect sentence. Okay, और आपको जो है वो जुमला सही करना था. Okay, so there aren't some pencils. There is something wrong with some. Okay. जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम सम यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं एनी. याद रखें आपका जो रूल है सम एंड एनी. सम हम पॉजिटिव में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और एनी हम क्वेश्चन या नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं. तो देयर आरंट एनी पेंसिल्स, क्या आएगा? सम की जगह एनी आएगा. देयर आर सम स्टिकर्स. कंप्लीट सेंटेंस, sentence was expanded, so I will just keep it short. There are some stickers. सवाल बनाना है तो सवाल में हम क्या करते हैं, आर को पहले ले आते हैं, और जब हम सवाल बनाते हैं तो सम हट जाता है. तो क्या हो जाएगा, आर देयर एनी स्टिकर्स. सवाल देखिए, सम इन सिंपल और पॉजिटिव कि आर देयर. सवाल बनेगा तो हेल्पिंग में पहले आ जाएगा और वर्ब पहले आ जाएगा. आर देयर, सम हट जाएगा तो सवाल बना आर देयर एनी स्टिकर्स. ओके, let's talk about this one. There is any parsley. No, सवाल बनेगा is there any parsley for me. Okay, that is a word order. Okay, आपने order में प्रॉब्लम किया. याद रखें जब भी आप जुमला करेक्ट कर रहे होते हैं grammatically, तो you have to focus on the punctuation marks like a question, exclamation or the period, full stop you say. तो उनको देखते हुए आपको जुमला बनाना होता है. You just have to rephrase the sentence or correct the sentence order. Question number 2. I guess you understood. It was easy. रूल सेम करके सम अफर्मेटिव साथ में इस्तेमाल होता है, एनी ज़्यादातर क्वेश्चन नेगेटिव इस्तेमाल होता है. कुछ केसेस हैं जहाँ पर सम को हम थोड़ा सा शफल करते हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो बहुत कम है. लेकिन यहाँ पर आपको कीप दिस रूल इन योर माइंड. सम सादे में और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, नेगेटिव और क्वेश्चन में आप एनी ला रहे हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 2. माय सिस्टर डज नॉट हैव, सी नेगेटिव है, मोस्ट प्रोबेबली एनी आएगा. ओके, अब आपके पास मनी क्या है, अनकाउंटेबल, एनी मनी. ओके, डू यू नो गुड रेस्टोरेंट्स अराउंड हियर. सवाल है एनी. डू यू नो एनी गुड रेस्टोरेंट्स अराउंड हियर. ओके, आर देयर पार्सल्स फॉर मी. सवाल है अगेन, आर देयर एनी पार्सल्स फॉर मी. Okay, so just keep it simple. In simple we use some, and negative interrogative we use any. Okay, here is one exception. I will talk about it. I will talk at the end. Okay, worksheet. That's from the lecture 10. Okay,
and a worksheet there was question number 1 there. Yes, in previous assignment you had to only put some or any. Okay, now that is a bit tricky because I have removed there plus helping verb plus some and any, like you have to put completely. That was a bit tricky or that was a bit difficult, and that is compared to that. So there, okay, information. What is information? Information is a noun, and it is an uncountable noun. Okay, and an uncountable noun we use. Remember, there are three types. There are three types of. We just met three types. There are two basically, but we just divided into three. Countable, plural countable, and uncountable. So information is uncountable, और हम दो के साथ क्या लगाते हैं? is लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? are लगाते हैं. ठीक है, और जब हम is लगाते हैं तो हम some लगाते हैं. There is some information. are नहीं आ सकता क्योंकि ये जो है वो प्लूरल नहीं, प्लूरल काउंटेबल नहीं, तो क्या अनकाउंटेबल. सिंपल रूल काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल. दो के साथ इस लगता है और एक के साथ आर लगता है, तो सिंपल आसान हो गया. ये जो 5, 6 there are 3 options and like that. थोड़ा सा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, मिस्टेक्स रिपीट हो रही है. याद रखें जब भी हम शॉर्ट आंसर देते हैं वो आप देंगे द प्रीसीडिंग सेंटेंस, इससे पिछला जुमला किस हवाले से, लाइक दैट सेंटेंस इज रिलेटेड टू द सेंटेंस व्हिच इज मेंशन्ड अबव. In the worksheet I mentioned about the cheese. Okay, is there any cheese in the room? Is there any cheese in the kitchen? तो चीज के बारे में बात हो रही है, तो जब जवाब यस में है तो आपको वो चीज से रिलेटेड डाल देना है. अगर वो सवाल इज देयर है तो जवाब होगा यस देयर इज, और अगर वो जवाब आर देयर है तो जवाब मिल जाएगा. सवाल आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यस देयर आर. शॉर्ट आंसर आपको मालूम है, हमने सीखा था यस सब्जेक्ट लगता है आपका, फिर आपके पास आपका जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है जिस टेंस में आपने वो बनाया है. फाइन, so you have to be careful about that. It is easy, but when you understand that you just pick up the sense, pick up the tense of the pick up the tense in which tense that sentence is made. Okay, आपको मालूम होना चाहिए. आप अगर समझ जाएंगे तो किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है तो वो थोड़ा सा पढ़ना आसान होगा, अदरवाइज it will give you tough time. Okay, 7 customers in the shop. सवाल है, क्या है? सवाल है. कस्टमर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल है. प्लूरल काउंटेबल के साथ हम आर लगाते हैं, आर देयर. और जब सवाल आएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स एनी आएगा. आर देयर एनी कस्टमर्स इन द शॉप. देख कितना आसान हो गया. मैंने 3 कैटेगरी बना दी, मुझे मालूम है इसके साथ आर आएगा. मैं लिख भी देता हूँ अपनी सहूलियत के लिए. ये आर आएगा और ये इज आएगा, ये इज आएगा. सिंपल. तो इस तरह जब आप अगर आप यू जस्ट फॉलो दिस टेक्निक यू विल इट विल बी लॉट इजियर फॉर यू. ओके, पेट्रोल इन द कार. सिंपल सेंटेंस है, मतलब सादा लाइक अफर्मेटिव लाइक सादा बनेगा. तो सेंटेंस ऑर्डर आपको मालूम चल गया. अब देयर इज, ओके, अब मैं नेगेटिव में बनाऊंगा. देखो ऑप्शंस आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल, तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको विदाउट ऑप्शन में बात कर रहा हूँ. देयर इज नो पेट्रोल इन द कार, या और क्या कह सकते हैं, देयर इजंट, क्या आएगा आगे, देयर इजंट एनी पेट्रोल इन द कार. द बोथ आर करेक्ट. क्लियर? ऑलराइट, ये जो है सेंटेंस नंबर 12 वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वर्कशीट दिस वी हैड वन ट्रिकी सेंटेंस, कैन आई हैव कॉफी. हम सवाल करते तो एनी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भी सवाल है, मैं एनी यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? सम. Remember when you have a request or you ask for like you just ask, you take orders or you just ask for the wish, like आप क्या लेना पसंद करेंगे. No, normally you go in restaurant and the waiter arrives and ask what would you like to have. So I would like to have some coffee. तो जब आप जवाब देना I would like to have, तो आप उससे भी सवाल करते हैं like can I have some coffee, can I have some milk. Okay, तो यहाँ पर ये जो that comes in the sense of positiveness. Okay, और याद रखिए any जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और some पॉजिटिव में, तो that is something, ये थोड़ा एक्सेप्शन है. can I have some coffee, like you are requesting someone, so आप some इस्तेमाल करें. I have got one example. Okay, it is very natural. I have dash bottoms. क्या आएगा? some आएगा नहीं आएगा?
देखते हैं क्या आएगा। डू यू हैव प्रॉब्लम? अब जुमला एक ही है लेकिन एक सादा है और एक सवाल है। सादे में क्या है? मींस अफर्मेटिव में आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव 2 प्रॉब्लम्स। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? फाइन। तो देख रहे हैं आप किस तरह जो है चेंज होता है। सो दैट इज अ रूल। आप इसको बेसिक को ध्यान में रखें, फिर बेसिक से इसको अटैच करेंगे, इट विल बी लॉट इजियर फॉर यू। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो यूज्ड टू का है। आपने जो स्टोरी बनाई थी लाइक आपने प्रेजेंट पास्ट सिंपल और यूज्ड टू का, इट वाज योर असाइनमेंट टू मेक अ स्टोरी but there were some confusions. That thing we are going to discuss in the next part of this lecture. So आपसे देखिएगा और you will watch, you will learn how to make your story. Talking about the challenges, a very important part. Challenges से आपके जल्दी से रिव्यू करते हैं। चैलेंजेस क्या है? मोर कॉमन चैलेंजेस: रिकॉर्डिंग ऑडियो, रिकॉर्डिंग वीडियो, टेंस परफॉर्म एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए जब भी कोई काम करेंगे, इन जनरली आई एम टॉकिंग, जो भी काम करेंगे आप मुश्किल तो होगी, ठीक है। कोई भी काम आसान नहीं है और आप तो जो है वो समथिंग चले, आप बिल्कुल यूनिक काम कर रहे हैं, लाइक कोई दूसरी जबान सीखना कोई हम आसान, कोई आम बात नहीं है। दैट इज नॉट दैट मच कॉमन, ओके। दूसरी जबान सीखना दैट इज नॉट ईजियर एज वेल, बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ओके, एंड माशाल्लाह यू हैव इम्प्रूव्ड। ऑडियो क्लिप में क्या मुश्किल आ रही है? लाइक आपने ये पहले किया नहीं है, और दूसरी मुश्किल में ये मुश्किल है कि आप किसी को भी कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू कॉपी, मैं ये नहीं चाह रहा, मैं आपसे कॉपी नहीं चाह रहा, ओके। कीप योर एक्सेंट विद यू, ओके। आपने अपने अंदाज में बोलना है, बट ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हुए आपको याद रखना है कि आप उसे सुना रहे हैं, लाइक आप बोल रहे हैं, आप रीड नहीं कर रहे हैं। जब आप 2 चीजें खास कर रखते हो अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, देखिए आई एम स्पीकिंग, आपको कहीं से नहीं लग रहा कि मैं कहीं से मैंने याद किया हुआ या कहीं से मैंने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ, मेरी आवाज़ कभी तेज़ हो रही है, मेरी आवाज़ कभी स्लो हो रही है। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना, लाइक दैट रियली इफेक्ट, दैट हैज एन इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट लाते हैं, ठीक है। जब आप याद करके बोलते हो या आप बगैर समझे बोलते हो तो ये मिस्टेक्स होंगी, ऑडियो क्लिप नहीं बनेगी कभी भी इसकी। तो क्या रूल है, क्या टेक्निक है इसको हल करने की? आप समझे वो बोल क्या है, ओके। अल्फाज को समझे, उसके सेंस को समझे। क्लिप जैसे भी हो आप, यू कैन डू इट। आई थिंक नॉट लाइक देयर इजंट एनी ऑडियो क्लिप यू कैन नॉट डू। कोई भी ऐसी ऑडियो क्लिप कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ कर करेंगे तो आपको समझ आएगा, और फिर आप अपने हिसाब से उसमें जो ना आप लाइक वो जो स्पीकर है जो भी है वो, तो अगर वो पूरा सेंटेंस एंड में जाके अगर वो लाइक पोज ले रहा है, आप जरूरी नहीं है आप भी उस तरह पोज लें, ठीक है। आप अपने हिसाब से पोज लें, लेकिन कब? जब आपको समझ आएगा। तो ऑडियो क्लिप में ये है। वीडियो क्लिप थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो है एक भी मिस्टेक जो है वो आपको अपने एक्सप्रेशंस पे जो है बड़ा काम करना पड़ता है। मुश्किल है बॉडी लैंग्वेज, इसीलिए जो है ये क्लास का पार्ट है कि आपको आपकी मिस्टेक्स नजर आए, पर्पस कि आप अपने आप को देखें और आप खुद जज करें अपने आप को कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, या क्या सही कर रही हूँ या क्या गलत कर रही हूँ। तो इट विल हेल्प यू आउट। इसमें 2 चीज़ें बड़ी काउंट कर दी है। नंबर 1, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो आपके वर्ड्स का साथ दे रहे हैं, आपकी बात का साथ दे रहे हैं, ओके। क्योंकि देयर आर सम लिसनिंग्स, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर which are something like good emotions and bad emotions, happy and sad, तो उसमें आपके एक्सप्रेशन बड़े काउंट करते हैं। सेकंड, योर बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप वीडियो बनाए ना तो कैमरा थोड़ा सा पीछे रखें ताकि आपके हैंड मूवमेंट में नजर आए, ओके। टेंस वर्ड फॉर्म, हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस मसले का हल ये है कि मैं आपके साथ वर्ड शेयर कर लूँगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आपको जो आसान रहेगा। टाइम मैनेजमेंट, मामू ये तो सबसे मुश्किल काम है, ओके, जस्ट किडिंग। टाइम मैनेज करना होगा आपको, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम अपना निकाल लेंगे, मुझे ये टाइम इसको देना है। अगर आप टाइम शफल करते रहेंगे तो आप जो है नहीं कर पाएंगे। मैंने जिस तरह टाइम स्पेसिफाई किया है कि मुझे इस टाइम रिकॉर्डिंग करनी है, इस टाइम असाइनमेंट चेक करना है, तो कुछ भी करके मैं उसमें जो अपने आप को पाबंद कर रहा हूँ। यू कैन मेक योर सेल्फ बाउंड, ओके, बाउंड योर सेल्फ। कोई दूसरा बाउंड करता है अच्छा नहीं लगता, और आप बाउंड होना भी नहीं चाहते किसी और पे। लेकिन आप जब खुद को बाउंड करेंगे तो आप मतलब कुछ सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो one like hey, there are some like hey responsibilities I accept. You are whether you are a housewife, whether you are doing job, whether you are a student, whether you are anyone, okay, कुछ भी आप कर रहे हैं, whatever your field is, whatever your age is, I understand you have challenges, but remember, if you will learn this, it will help you out, and it will
help you easy your future challenges. आपको जो आने वाले मुस्तकबिल में फिर challenges हैं वो आपके आसान हो जाएंगे अगर आप इस पर आप लाइक स्पेसिफिक टाइम दो, और जब टाइम दे तो भरपूर टाइम दें, थोड़ा टाइम दें लेकिन फुल अटेंशन के साथ। तो अपने आप को कोशिश करें बाउंड करें, कोशिश करें खुद को बाउंड करने की, डिसिप्लिन करने की, कि मुझे ये टाइम मुझे देना है। आई बिलीव एंड आई फर्मली बिलीव, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, मेरा यकीन, मेरा अकीदा है कि इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड टुगेदर, inshallah there will be sweet food, there will be like fruits, and the fruits will be too sweet of this hard working efforts. So I hope you learned and I hope you enjoyed. It's enough. Let's get to the next topic, used to, and till then take care, stay blessed. If you haven't subscribed, subscribe to the channel. Thank you so much.